بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں حلقہ LF25 اپر نیلم اس وقت تمام جو سیاسی قیادت ہے، سیاسی کارکنان ہے، آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے اس کا مرکزی نگاہ بنی ہوئی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دو سابق وزرائے اعظم آمنے سامنے وہاں پر الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک طرف شاہ غلام قادر جو صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کا ٹکٹ فائنل ہو چکا ہے، جبکہ دوسری جانب سردار تنویر الیاس جن کا تعلق یوں تو پونچھ ڈویژن سے ہے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ شنید ہے کہ ان کو اپر حلقے کا ٹکٹ ملے گا، اور وہ بھی سابق وزیر اعظم رہ چکے ہیں، انہوں نے بلدیاتی الیکشن بھی کروائے ہیں۔ صورتحال کیا بنے گی جب دو سابق وزرائے اعظم وہاں پر آمنے سامنے آئیں گے، اور دونوں وزیر اعظم کے اسٹیچر کے لوگ ہیں، وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں، وہ وہاں پر الیکشن لڑیں گے تو عوام کس طرف جائے گی؟ وہاں پر جو لوکل قیادت ہے، دوسری جانب جو عوام ہے، ان کے ہاں یہ ہے کہ شاہ غلام قادر صاحب بھی کیونکہ باہر سے آئے ہیں، اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ بھی باہر سے آتے ہیں تو وہاں کی جو لوکل قیادت ہے وہ کہاں جائے گی، یا لوکل جو نوجوان ہیں وہ کیسے دیکھیں گے؟ یہ سب اور دیگر بہت ساری باتیں کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں جناب عتیق خواجہ، محمد عتیق خواجہ ہمارے درمیان موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ ایک تو گورنمنٹ کی جو پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ان کی گورنمنٹ ہے، ان کا جو دورانیہ گزرا ہے، اس میں ان کی کارکردگی کیا رہی ہے، تعلیمی پیکج کو یہ کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ نیلم کی سیاست کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ بہت شکریہ عتیق صاحب، آپ کو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم خوش آمدید کریں۔ شکریہ نواز صاحب، آپ ہمیشہ بھائیوں کی طرح عزت دیتے ہیں اور ٹائم دیا آپ نے۔ اچھا سر، آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا، اپنا قیمتی وقت دیا۔ ہمیں یہ بتائیں کہ کائنڈلی کہ کیا بنے گا اپر حلقے میں شاہ غلام قادر صاحب ورسز تنویر الیاس صاحب، یا شاہ غلام قادر صاحب ورسز میاں وحید صاحب؟ کیا ڈفرنس ہوگا اگر میاں وحید صاحب وہاں پر الیکشن لڑتے ہیں یا تنویر الیاس صاحب لڑتے ہیں، تو کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں، ابھی تو تنویر الیاس صاحب کے حوالے سے جسٹ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، اور پروپیگنڈا بھی یہی نون لیگ والے چلا رہے ہیں۔ اچھا، یہ اس لیے چلا رہے ہیں تاکہ پیپلز پارٹی کا کارکن فٹ اپ ہو جائے۔ اچھا، لیکن میرے خیال سے ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا کارکن پیپلز پارٹی کے تیر کے نشان کا کارکن ہے۔ صحیح، تو اس طرح فٹ اپ نہیں ہوتے ان کے پروپیگنڈوں سے۔ تنویر الیاس صاحب نہیں لڑیں گے؟ ابھی یہ چیزیں کوئی واضح نہیں ہیں۔ ٹکٹ کا فیصلہ مدر پارٹی نے بھی کرنا ہے، اور ٹکٹ کا فیصلہ اپر حلقے کے کارکنوں نے بھی کرنا ہے۔ اچھا، جو ڈیسائیڈ اگر مدر پارٹی مسلط کرتی ہے تو کارکن اس طرح کی چیزیں نہیں مانتے، کیونکہ اگر دیکھا جائے اس وقت میاں عبدالوحید صاحب کئی گنا سیاسی قد کاٹ کے بڑے آدمی ہیں شاہ غلام قادر اور تنویر الیاس صاحب کی نسبت سے۔ اگر مالیہ دیکھ کے، پیسے دیکھ کے سیاست دان یا کوئی اس طرح وزیر اعظم بنتا یا اس طرح دیکھا جائے تو پاکستان میں سب سے زیادہ پیسے ملک ریاض صاحب کے پاس، وہ بھی اس دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ سیاست کے لیے بصیرت چاہیے ہوتی ہے، سیاست کے لیے وہ سیاسی ویژن چاہیے ہوتا ہے، اور سیاست کے لیے بڑا وہ سوچ چاہیے ہوتی ہے، اور یہ جو سیاست کا جو کام ہے یہ 24 آور کا کام ہے اور 12 مہینہ کا کام ہے۔ اچھا، کہا جاتا ہے کہ اپر حلقے میں میاں وحید صاحب ورسز شاہ غلام قادر صاحب اگر مقابلہ کرتے ہیں تو 1 on 1 ہوگا، اور اگر سردار تنویر الیاس وہاں پر جاتے ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سیٹ وہاں سے ڈیفینیٹلی لوز کر جائے گی۔ کیا یہ سچ ہے؟ دیکھیں، آپ نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا ہے، پچھلا الیکشن جو 2021 کا الیکشن گزرا ہے، 600 ووٹوں سے ہم ہارے ہیں، اور ہارے صرف اس وجہ سے، ایک تو ہم نے نقدر 22 تاریخ کو جو پروگرام کروایا اس کی وجہ سے، ایک 2 دن میاں وحید صاحب کا وہاں سے پہلے آنے کی وجہ سے، تو باقی تو ہم نے اس وقت بھی مقابلہ ہم نے 1 to 1 کیا۔ اب بات اگر آ جاتی ہے تنویر الیاس صاحب کی، یہاں دیکھیں میں ایک تجزیے کے طور، سیاسی کارکن کے تجزیے کے طور پہ بات کروں گا۔ تنویر الیاس صاحب اگر اپر حلقے سے الیکشن لڑتے ہیں تو الیکشن پیسوں کے بل بوتے پہ نہیں لڑا جاتا، الیکشن میں اس حلقے میں الیکشن کے دورانیہ میں ان رہنا پڑتا ہے۔ تنویر الیاس صاحب جائیں گے، 2 چکر لگائیں گے، 3 چکر لگائیں گے، تو 2-3 چکر لگانے کے باوجود حلقہ خالی رہے گا۔ مطلب ایک سائڈ سے اگر حلقہ خالی رہتا ہے، کارکن کو لیڈر ساتھ چلاتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے، اس کو موشن میں رکھتا ہے، تو اگر یہ صورتحال رہی تو پھر مطلب خالی پیسے کے بل بوتے پہ الیکشن نہیں جیتے جا سکتے۔ پھر آپ کا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ سیٹ خطرے میں ہے؟ نہیں،
खतरे में इस सूरत में सपोज्ड हो, आप सपोज्ड बात करें कि अगर तनवीर इलियास साहब आते हैं, तनवीर इलियास साहब अगर अपर हल्के में इलेक्शन लड़ते हैं तो फिर मतलब ये चीज़ें मुश्किलात खड़ी करेंगे। लेकिन अगर मियाँ वहीद साहब इलेक्शन लड़ते हैं, देखें मियाँ वहीद साहब अगर इलेक्शन लड़ते हैं, अभी हमने बहुत सारे प्रोग्राम पेंडिंग रखे हैं, सियासी ग्राफ उस हल्के में हमारा काफ़ी मजबूत है, जिसकी वजह से शाह गुलाम कादिर साहब ने लोअर हल्के में अपनी एंट्री मारी है। वो इसलिए मारी है, अगर उनको पता होता कि मैं अपर हल्का जीत जाऊंगा तो वो कभी ये अपने आप को लोअर हल्के में बिजी ना करते। अभी उनको मालूम है कि हम अपर हल्के से लूज कर रहे हैं, और अभी ईद के बाद हमारे पास नकदर से चंद जो कद काट वाले लोग हैं वो शामिल होंगे। इसी तरह आप आगे जाएं, यूनियन कौंसिल लुआत आप वाली यूनियन कौंसिल से कद काट वाले लोग शामिल हो जाएंगे। इसी तरह द्वारियाँ, यूनियन कौंसिल द्वारियाँ से हमारे साथ कद काट वाले लोग, सियासी कद काट वाले लोग शामिल हो जाएंगे। यूनियन कौंसिल ददनियाल से, यूनियन कौंसिल शारदा से, गो के ये कहा जाता है कि शाह गुलाम कादिर इस यूनियन कौंसिल से मजबूत है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूनियन कौंसिल केल और केल टाउन से हमारे साथ लोग शामिल हो रहे हैं, और अपर और लोअर ग्रेस वैली का आपके सामने है। अच्छा, ग्रेस वैली में जो गुज़श्ता दिनों वाक़या पेश है, जो असद अलीम शाह का रास्ता वहाँ पर रोका कुछ नौजवानों ने वहाँ पर कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, हमारे ये 4 मुतालबात हैं। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी यही शर्त है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रास्ता भी वहाँ पर ग्रेस में एंट्री बंद है? मैं कहता हूँ एंट्री बंद नहीं है, मैं कहता हूँ ग्रेस वैली में हमेशा पीपल्स पार्टी ने काम किया है। आज भी तालीमी पैकेज में हमने वहाँ दिया डिग्री कॉलेज, मॉडल डिग्री कॉलेज, हमने वहाँ ग्रेस वैली में हाई स्कूल दिए, हायर सेकेंडरी दिए, मिडिल स्कूल दिए, प्राइमरी स्कूल दिए। अब और पिछले अनवारुल हक साहब के दौर में हमने RHC दिया वहाँ, और उस अरसे में आपने देखा होगा कि 24 और 12 महीने उनके हॉस्पिटल जो हेल्थ फैसिलिटीज़ जो थी उन लोगों को मैसर रही है। तो मैं तो कहता हूँ ये शहूर का एक लेवल है, उन लोगों ने रास्ता रोका। मैं तो उन लोगों को दाद देता हूँ कि ये जो ग्रेस वैली से रास्ता रोका गया, ये अगर 15 साल या 17 साल पहले बाबे नीलम से रोका गया होता तो आज ये सूरत हाल में होती। तो कल अगर वो आपका रास्ता रोकें, देखिए अगर हम काम नहीं करते, हम सियासी स्लोगन के तौर पे जाते हैं, हमारा वहाँ अमली इक़दामात नहीं नजर आता है, तो वो तो लोगों का हक है। इस तालीमी पैकेज को आप कैसे देखते हैं? इसको सियासी रिश्वत के तौर पर भी कहा जाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्च किया, इलेक्शन करीब हैं और अब तालीमी पैकेज की मंजूरी, पहले तो ये अफवाह थी कि मंजूरी नहीं हो रहा, ये वैसे मतलब लॉलीपॉप है। देखिए मुस्लिम लीग नून वाले या तो ये सियासी कारकुन नहीं है, या तो ये सियासी कारकुन नहीं है, या इनको सियासत करनी नहीं आती। देखिए गवर्नमेंट आती है लोगों की वोट की पर्ची से, और उन्होंने वो काम करने होते हैं जहां वो लोगों को सहूलत दें। लोगों को सहूलत देना गवर्नमेंट का आखिरी दिन तक भी फर्ज होता है देना। शुरू में जब एजुकेशन पैकेज, हमारी गवर्नमेंट बनी, एजुकेशन पैकेज पे बात चली, तो इन्होंने कोई लिस्टें शिस्टें वो पैड शैड से कोई खत शत अपने निकाले। हाँ, ये भी एक बड़ा काइंडली पहले मुझे ये कंफर्म कर दें, ये एक बड़ा एक हर तरफ से एक लिस्ट आ रही है। मसलन एक मैं देख रहा था लवात मॉडल डिग्री कॉलेज के लिए पीर मजहर सईद शाह साहब के पैड से भी बात की हुई है, शाह गुलाम कादिर साहब के पैड से भी बात की हुई है, मियाँ वहीद साहब के पैड भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि उन्होंने सबसे पहले कहा, उन्होंने सबसे पहले कहा, उन्होंने सबसे पहले कहा। इसकी हकीकत क्या है? किस सब क्लेम कर रहे हैं? देखिए नोटिफिकेशन आने के बाद ये लोग अगर क्लेम करें, देखिए मजहर सईद साहब इस गवर्नमेंट बनने के बाद आपको एक्टिव किसी जगह नजर आए? नहीं आए। शाह साहब अपोजिशन लीडर हैं, अगर अपोजिशन गवर्नमेंट के काम करने शुरू कर दे, गवर्नमेंट वाली, फिर अपोजिशन का क्या काम है? अपोजिशन ये गवर्नमेंट की जवाबदेही होती है, गवर्नमेंट ने दिया। मोहसिन मिनिस्टर की तरजीहात थी, उन्होंने इस वक्त अपर वैली को 40 साल का उन्होंने इजाला किया। अपर वैली 5 मॉडल डिग्री कॉलेज इस दफा तालीमी पैकेज में आए, 5 मॉडल डिग्री, 5 मॉडल, और इस तरह से स्कूल अपग्रेडेशन भी हुई है, स्कूल अपग्रेड हुए। इवन कि हमने शाह साहब की जिस यूनियन कौंसिल को वो कहते हैं कि वहाँ गर्ल्स हाई स्कूल दिया दुसुट में। अच्छा। और वो कोई करके इन्होंने कटवा दिया,
फिर दोबारा हमने वो लिस्ट में शामिल किया, जिसकी वजह से एजुकेशन पैकेज 3 दिन लेट हुआ कि अच्छा। उन्होंने कोई इदारे कटवाए सियासत, क्रेडिट और डिसक्रेडिट के चक्कर में। अच्छा, मतलब वो कुछ आपके ख्याल में शाह साहब ने अपने हलके में, अपनी यूनियन काउंसिल में जो तालीमी पैकेज अपग्रेड कर रहे थे इदारे, उनको रुकवाने के लिए रुकवाया, कोशिश खाली की? रुकवाया नहीं है, उन्होंने 2-3 इदारे वहां से कटवाए। इसलिए कटवाए ताकि सियासी क्रेडिट और जिसका दुसुट गर्ल्स हाई स्कूल जो है वो तो वहाँ के लोगों को, उस गांव के लोगों को पता है, पूरे सबसे नीलम वैली के लोगों को पता है। यानी कि इस कदर सियासतदान की सियासी बसीरत बड़ी वसी होनी चाहिए। हमें शाह साहब की समझ नहीं आती और आनी भी नहीं है। वो इसलिए नहीं आनी क्योंकि नीलम वैली के लोगों के साथ उनको क्या लेना देना। सही है। तो ये जो तालीमी पैकेज मालियात से मंजूरी हो गई है, जी अब ये तालीमी पैकेज ऑन बोर्ड है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये असामियाँ जो हैं तकरीबन 3,500 असामी जो आज़ाद कश्मीर भर में तख्लीक हुई है, अब ये असामियाँ बजट में इनके लिए एलोकेशन होगी, ये हुई है, अब ये लोग मालियात भर्ती से होंगी। मंजूरी, ये अलग से इनके लिए बजट पेश करने की अब जरूरत ही नहीं है। ये अच्छा, ऑलरेडी मालियात से मंजूर हो गया है। अच्छी मंजूर हो चुकी है। मंजूर अब हो कल कोई चाहे तो इस पे भर्ती कर दे, परसों हाँ, चाहे इस पे भर्ती कर दे। हाँ, वो ये तो सिलसिला। अच्छा, कल तो इलेक्शन कमीशन 15 तारीख का कोई उनका था कि 15 तारीख को इलेक्शन शेड्यूल जारी कर देंगे, उसके बाद तो भर्तियों पर पाबंदी हो जाएगी। और आप ये तो मंजूर कर दिया तालीमी पैकेज, तो क्या होगा? देखें, भर्ती करना ये सेकेंडरी चीज है। सही है, मेन जो प्राइमरी चीज है, हमने एजुकेशन पैकेज दिया। सही, इसके बाद गवर्नमेंट का तसलसल होती है, वो कोई भी गवर्नमेंट हो, सही, क्योंकि वो वोट की पर्ची से आती है। सही, और हमने जितने कर सके हम करेंगे। उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट जो भी हो, वो हमारी हुई, हम फिर करेंगे। वो किसी और की हुई, वो करेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा गवर्नमेंट की तसलसल होती है, तो वो लोगों को सहूलियात से नवाजे। फारूक हैदर साहब ने कहा कि मैं इसके खिलाफ कोर्ट में भी जाऊंगा। इससे हट के देखें, आप देखें, शुरू में इन्होंने कहा कि लिस्टें जारी की, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप नून लीग का क्या था, इन्होंने कहा कि अब तो मतलब ये हो ही नहीं रहा, मालियात ने इनकार कर दिया। अब इन बेवकूफ़ों को ये पता नहीं है कि मालियात एक मिनिस्टर के अंडर होता है, मालियात वज़ीर ख़जाना जो है उसके अंडर होता है। वो कैसे इनकार कर सकता है गवर्नमेंट? उसके बाद इन्होंने फिर शुरू किया, नहीं जी ये एजुकेशन पैकेज ऐसे है तैसे, ये आ ही नहीं रहा। फिर चौथी मरतबा इन्होंने इलेक्शन कमीशन में चले गए और ये शाह साहब की दरख्वास्त है। अब एजुकेशन पैकेज पांचवा स्टेप इनका देखें, अब क्रेडिट भी ले रहे हैं कि अच्छा, ये हमने किया है जी। इलेक्शन कमीशन ने इनको कोई जवाब दिया? इलेक्शन कमीशन ने गवर्नमेंट से जवाब मांगना है और गवर्नमेंट ने अपना जवाब दिया होगा। सही है, यानी कि अब ये तालीमी पैकेज रिवर्स नहीं होगा आपके नहीं, ख्याल में? नहीं, किसी सूरत रिवर्स किसी नहीं हो सूरत सकता। में reverse। पहले भी एक दफा तालीमी पैकेज मंजूर हुआ था, लेकिन पहले उस वक्त भी इन लोगों ने यही हरकतें की थी, वफाक से फंड रुकाया था, फिर हमने यहाँ से अपना बजट क्रिएट करके वो एजुकेशन पैकेज दिया था और आपने देखा था डंके की चोट पे वो पैकेज फिर अदालत ने कहा था कि अच्छा, लोअर हल्के में जो इस वक्त अवान बरादरी है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ रही है। नहीं, इस तरह से जो कैयन शरीफ है वहाँ पर, और फिर जो लोअर हल्के में राजा इलियास साहब हैं, मियाँ शफीक जागबी साहब हैं, ये कैंडिडेट भी वहाँ पर काम कर रहे हैं। मियाँ वहीद साहब जो हैं, कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में रहने की वजह से, ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नुकसान होगा, वोट कम होंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आज तक आप देखें हमारा कोई जेन्युइन किस्म का वोटर लोअर हल्के से टूटा है। इवन कि हमने 5 साल वहाँ शमूलियती प्रोग्राम रखे, डे 1 से। पीटीआई के वोटर हमारे साथ शामिल हुए, मुस्लिम लीग नून का वोटर हमारे साथ शामिल हुआ। हम तो वहाँ 22 या 25 हज़ार से शुरू करेंगे और शाह साहब 3500 से शुरू करेंगे, या समर सिराज के 2000 मिला लें, 5000 से शुरू करें। कहाँ 25,000 और कहाँ ये। दूसरी बात, फिर आपने अवान बरादरी की बात की। सरवर वान साहब वो हमारे साथ थे कब? वो पीटीआई के साथ थे। फिर मलिक हमीद अवान साहब, ये शाह साहब के कुछ लोग थे जो भेजे गए थे पीटीआई में। अच्छा। उस वक्त प्रेशर डेवलप करने के लिए, ताकि मियाँ अब्दुल वहीद साहब अपर हल्के से मूव करें लोअर हल्के की। नगदर में भी तो आपको मुश्किलात होंगी, वहाँ से लोकल जो क़यादत है आबद अफसल भट्ट की सूरत में वहाँ पर स्टैंड कर रही है, वहाँ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को
वहाँ पे नून लीग को नुकसान देगा या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? देखिए, मैंने पहले भी आपको पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, जितने दिए इतनी रोशनी। आबद भट्ट साहब हमारे लिए काबिल इज़्ज़त हैं और उनका हक है अपने लोगों के पास जाना, लोगों को बताना, और हमारा भी है, हम भी सियासी कारकुन हैं, हम भी अपने लोगों के पास जाएंगे। लेकिन जिस वार्ड से वो हैं, जिस वार्ड से इक्का दुक्का करके नून लीग वोट ले रही थी, लेकिन इस वक्त उनको थोड़ा सा लग पता जाएगा, उरालगांव से भी उनको यूनियन काउंसिल से भी लग पता जाएगा। तो लवात में भी जो पिछला प्रोग्राम हुआ नून लीग का, उसमें शकूर बांडे साहब जो इस वक्त अपने आप को आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर ला रहे हैं, उनके भाई जो वहाँ के काउंसलर भी हैं, बल्कि वो वहाँ डॉक्टर गुलाम मोहम्मद साहब, वो और दीगर उनके कुछ रिश्तेदार वो नून लीग में शामिल हुए। देखें, वो शामिल थे, वो उनकी सीट पे जीते हैं पिछला बल्दियाती इलेक्शन। लेकिन डॉक्टर साहब ने देखना चाहिए, डॉक्टर साहब ने क्या देखना चाहिए। हमने जब चेयरमैन ज़िला कौंसिल बने, शाह साहब ने एक पर्ची पेश की अपने नाम की, हमने इनकार किया। हमने कहा कि मुश्तरका तौर पे, क्योंकि वहाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग का अलायंस हुआ था जी, हमने कहा था कि आप डॉक्टर साहब को उम्मीदवार लगाएं, ठीक है। और डॉक्टर साहब को शाह साहब ने रिजेक्ट किया। उसके अच्छा। बाद उनकी ये ख्वाहिश थी कि शकूर बांडे साहब सदर बनेंगे मुस्लिम लीग नून के, वो भी उनको नहीं दिया। उन्होंने सोचना चाहिए कि हम किस खातिर इतनी जान मार, ये बात तो उन्होंने सोचनी चाहिए। बहुत शुक्रिया ख्वाजा अतीक साहब, आपको फिर इंशाल्लाह कभी ज़हमत देंगे। नाज़रीन, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट जो अपर हल्का नीलम जो इस वक्त मरकज़ी निगाह बना हुआ है उसकी सूरत हाल पर गौर हो रहा था और देखा जा रहा था कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। और ख्वाजा अतीक साहब का ये कहना है कि अगर तनवीर इलियास वहाँ पर इलेक्शन लड़ते हैं तो सूरत हाल नून लीग के लिए फेवरेबल होगी, लेकिन अगर मियाँ वहीद वहाँ पर इलेक्शन लड़ते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पर भारी अक्सरियत से जीत जाएगी। अपना बहुत सारा रखिए ख्याल, अपने मेज़बान हाकिम नवाज़ मुगल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।